Okay, fine. Organizational structure. The title of today's topic is organizational structure. As we know that we have three modules in OB. The part A belongs to the individual part, the part B belongs to the team and the group, and the last one, the C, and organization. In the last two sessions, we have conducted the session over the organization, organizational stress, and organization change management. And now we are making discussion over the organizational structure. This topic has a very uh, key concept of management there, and many students, those who have already studied about the management basics, they already know about what are the organizational structure. The first we have to be understand the definition of organization. When the two or more peoples are combined together, work together, and they use the synergy to make output and to improve their efficiency and effectiveness to achieve the common goal and desire. So what are the essentials? The first thing is that two or more people are there. The second thing is that they all have a common goal. The third thing is that they want to achieve certain tasks within a certain time. And the fourth one, we can say that their intention is to improve their efficiency and effectiveness. This is the definition of organization, right? तो क्या हमारा institution organization है? Yes, two more people are there and they all are working together. They have a common goal. अच्छा, क्या मस्जिद को हम organization कह सकते हैं? अगर हम definition को accordingly देखें तो too many people are there. They all have a common goal और वो एक पर्पस के लिए हैं, ठीक है, लेकिन बस प्रॉफिट मोटिव नहीं है. इस तरह से क्या हम पुलिस इंस्टीट्यूशंस को कह सकते हैं? यस, वो टू मोर पीपल्स आर देयर, ये इंस्टीट्यूशंस हैं एंड दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर, दे हैव अ कॉमन गोल. क्या हम हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? यस, वी कैन. Many multiple peoples are there, they have a common goal, they want to achieve certain tasks and they use the synergy, they मिल के efforts करते हैं. हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज़ समझ आ गया कि when institutions have a group of people. तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, यानी हम कहते हैं ना इदारा चल रहा है, तो इदारा की टांगे नहीं है जो चल रहा है, इदारा लोगों से चल रहा है. अ ग्रुप ऑफ पीपल मेक द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, ये तो सारी बात हो गई. And now we are discussing over the organization structure. And what is the structure? Structure from top to bottom and bottom to top, there is a hierarchy. There is a ordered arrangement of the management. To whom we are responsible and to whom I give instructions and direction, to whom I will be responsible for that. तो ये जो एक hierarchy होती है, ये जो है organization structure कहलाता है, from top to bottom or bottom to top. So there are 6 key elements that managers need to address when they design an organizational structure. Organizational structure narrow भी होता है, flat भी होता है, small भी होता है, tall भी होता है. What does it mean? कि जो structure है उसके अंदर many number of people are there. कि आपने जो है वो अपने बॉस को कहना है, तो फिर आपका जो डायरेक्ट बॉस कौन है? सुपीरियर जिसे कहते हैं, और फिर उससे ऊपर बीओडी है, फिर उससे ऊपर सीईओ है, और फिर सीईओ के अंदर एग्जेक्टिव्स की भी एक लाइन लगी है, फिर जाके फाइनल कोई ओनर है. ये सारी बीओजी बना हुआ है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बना हुआ है. तो ये एक हिरार्की बनी हुई है. लोअर ऑर्डर पे आ जाओ तो फिर एडमिन स्टाफ है, फिर लोअर स्टाफ है, फिर लेबर है, फिर नॉन मैनेजरियल स्टाफ है. तो ये हमारे पास एक हिरार्की होती है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि दरवाज़ा खटखटाया डायरेक्ट सीईओ के ऑफिस में घुस जाए, बोले भाई मेरा मसला हल करो, नहीं करो. आपने अपना मसला पहले बताना पड़ेगा लेबर यूनियन को, अगर आप लेबर हैं, फिर लेबर इंचार्ज को, फिर मैनेजर को, फिर जो है वो जनरल मैनेजर को, जीएम को, फिर डायरेक्टर, फिर ऊपर तक बात जाएगी. ये थोड़ी ना दरवाज़ा डायरेक्ट खटखटाया, चलो भाई मुझे बताओ क्या मसला है. तो यहाँ पे हमें एक हिरार्की को फॉलो करना पड़ता है. हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ताकि हमें पता लगता जाए to whom we are responsible and how much we are responsible for that. तो यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन क्या है स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करने की? वर्क स्पेशलाइजेशन. कि स्पेशलाइजेशन क्या होती है? कि डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइड द वर्क और टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल एबिलिटी एंड द टैलेंट. तो जॉब्स को सेपरेट कर दिया जाता है और फिर पता लग जाएगा, अच्छा भाई आप पेपर मेकिंग करेंगे तो आपने इनको रिस्पॉन्सिबल, अच्छा आप सेल करेंगे तो आपके ऊपर सेल्स मैनेजर बिठा दिया हमने, आप मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग के इश्यूज मार्केटिंग मैनेजर में, अच्छा आईटी के इश्यूज हैं, ये आईटी मैनेजर है, आप इनको जवाब देंगे.
तो इस तरह से बाय फंक्शन बाय स्पेशलाइजेशन हमने डिवाइड कर दिया। और सेकंड पार्ट भी आपने देखा होगा जो हेडिंग में मेंशन है वो भी इसमें कवर होता है कि डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं हर जॉब्स को लेके, कि जितनी भी जॉब्स हैं, एक पूरा प्रोसेस है ना, एक पूरे प्रोसेस है, उसको स्प्लिट अप किया इनटू मेनी मल्टीपल सेगमेंट्स एंड मेक अ डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे केयू तुम लोग जाते हो, केयू में जाओगे तो देखोगे केयू का एक सेंट्रलाइज एडमिन ऑफिस है, लेकिन उसके फिर अलग अलग डिपार्टमेंट है हर फील्ड के, हर फैकल्टी के, लेकिन एक सेंट्रलाइजेशन है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मेरे जहन में मैंने आपको कोट की, इस तरह चेन ऑफ कमांड। अच्छा, चेन ऑफ कमांड क्या है कि आपने किसको जो है वो अथॉरिटी किसके पास है, फाइनल बॉस कौन होगा, और हु शुड कमांड एंड हाउ मच। ये आपने हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल थे उसमें भी इसको, इस हेडिंग को आपने पढ़ा होगा, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन है, लोएस्ट जो है वो लेबर है वो कौन होगा, वर्कर है, किसको रिपोर्ट करना है मुझे, कि मैं ये काम लेके जाऊं तो मैं किसको रिपोर्ट करूं। तो ये सारा चेन ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन कहते हैं एक तरह का जाल, वेब। ठीक है, और मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं हाउ मच नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन हेड, दिस इज कॉल्ड स्पैन। जैसे कि एक आदमी के अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना बड़ा है। 9 लोग काम कर रहे हैं, हम कहेंगे इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना नैरो है। तो स्पैन क्या है कि हाउ मच नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर सिंगल मैन, मींस मैनेजर, और कितने सुपरवाइजर, किसको डायरेक्ट। अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि सेंट्रलाइज क्या होता है कि एक प्लेस पे सारी बात, जैसे डिफरेंट कैंपसेस होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, है ना, तो उसमें अब एक सेंट्रलाइज बॉडी बना दी गई है कि भाई हमें जिम्मेदार है, हमें रिस्पॉन्सिबल है, हमें यहीं से सिग्नेचरिंग अथॉरिटी है और सारे काम यहीं से पास ऑन होंगे। ये सेंट्रलाइज हो गया। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि जब इख्तियार दे दिए जाए, अथॉरिटी दे दी जाए जो है वो कैंपसेस को, ब्रांचेस को। और ये जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जो द पावर शुड बी सेंट्रलाइज एट वन हैंड, द अथॉरिटी शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर वन। ठीक है, अब जरा फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन से मुराद ये फॉर्मल है, फॉर्मल कि किस तरह से फॉर्म होती है। तो जॉब्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और उसको जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। यानी हमें 5 से 6 पॉइंट्स पता लगे, दोबारा रिपीट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए काम को डिवाइड कर दिया जाता है, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, कमांड के जरिए कि कौन कमांड करेगा, कौन सेक्शन करेगा, एक स्पैन ऑफ कंट्रोल बन जाता है, नैरो या वाइड, कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन।